Hello guys, welcome back to our channel. Now we will start the current affair of 18 December. Question number first. When is the International Day to End Violence Against Sex Workers observed worldwide? सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 17 दिसंबर. Right answer is option number D, 17 December. This day is observed every year on 17 December. It was first marked in 2003 after the killing of 49 sex workers in Seattle, USA. The red umbrella is its global symbol representing protection and resistance against violence. यह दिवस हर वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 2003 में अमेरिका के सिएटल शहर में 49 सेक्स वर्कर्स की हत्या के बाद हुई थी. लाल छाता इसका वैश्विक प्रतीक है जो सुरक्षा और हिंसा के विरोध को दर्शाता है. Our next question is question number second. Which Indian Navy squadron commissioned at INS Hansa in Goa in December 2025 became the second MH-60R helicopter unit on the western coast? दिसंबर 2025 में गोवा के आईएनएस हंसा में कमीशन किया गया भारतीय नौसेना का कौन सा स्क्वाड्रन पश्चिमी तट पर दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर यूनिट बना? और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए INAS 331 Sea Kings, ऑप्शन बी INAS 335 Ospreys, ऑप्शन सी INAS 300 White Tigers, ऑप्शन डी INAS 315 Winged Stallions. Our right answer is option number B, 335 Ospreys. INAS 335 Ospreys was commissioned to operate MH-60R helicopters. These helicopters improve anti-submarine warfare, maritime strikes, and search and rescue operations, strengthening naval power on the western seaboards. INAS 335 ऑस्प्रे को MH-60R हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए कमीशन किया गया. ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री हमले और खोज बचाव अभियानों में नौसेना की क्षमता बढ़ाते हैं. Next question is question number 3. Which Indian film directed by Neeraj Ghaiwan was shortlisted for the International Feature Film category at the Oscars 2026? नीरज घायवान द्वारा निर्देशित कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 के इंटरनेशनल फीचर फिल्म वर्ग में शॉर्टलिस्ट हुई? द डिसिप्लिन, होमबाउंड, कोर्ट, विलेज रॉक स्टार्स. Our right answer is Homebound. Homebound was shortlisted among the top 15 films from 86 countries. The achievement highlights India's growing recognition in global cinema. Homebound को 86 देशों की फिल्मों में से शीर्ष 15 में जगह मिली और यह वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती पहचान को दर्शाता है. Our next question is question number 4. Which company is developing the 900 megawatt Arun 3 hydroelectric project in Nepal? नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है? और ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी एनएचपीसी लिमिटेड, ऑप्शन सी एसजेवीएन लिमिटेड, ऑप्शन डी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एसजेवीएन लिमिटेड. SJVN Limited is developing the Arun 3 project.
through its subsidiary in Nepal. It is major India-Nepal clean energy project that will strengthen regional energy cooperation. ये जो अरुण 3 परियोजना है एसजेवीएन की सहायक कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है और यह भारत और नेपाल के बीच स्वच्छ ऊर्जा सहयोग की एक प्रमुख परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which constitutional article was debated by Supreme Court in 2025 regarding governor's assent to state bills? राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित 2025 में सुप्रीम कोर्ट की बहस किस अनुच्छेद पर केंद्रित थी? Our options are option number A, Article 356, option number B, Article 200, option number C, Article 370, Article D, sorry, option number D, Article 123. Our right answer is option number B, Article 200. Article 200 deal with the governor's powers to give or withhold assent the bill to state bills. Assent to the state bills. The debated focus on delay, discretionary power, or balance between federal authority and legislative supremacy. अनुच्छेद 200 जो है वो राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने या उसे रोकने का अधिकार देता है। बहस करना, देरी, विवेकाधीन शक्ति या संघीय संतुलन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which institution released the 10th edition of the Handbook of Statistics on Indian States 2024 to 25? भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2024 से 25 का 10वां संस्करण किस संस्था ने जारी किया? Our options are given below. Option A, Ministry of Finance. Option B, नीति आयोग. Option C, Reserve Bank of India. या option D, Ministry of Statistical and Program Implementation. Our right answer is Reserve Bank of India. The RBI published this handbook to provide long-term state-wise socio-economic data. The latest edition added new tables and an external sector section for better comparison among states. आरबीआई यह पुस्तिका राज्यों में सामाजिक आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशित करता है और नए संस्करण के अतिरिक्त जो तालिकाएं और बाह्य क्षेत्र अनुभाग भी इससे जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which institution under the Ministry of Culture won 2 PRSI National Award 2025? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत किस संस्था ने पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में 2 पुरस्कार जीते हैं? Our options are option A, Archaeological Survey of India, option B, National Council of Science Museums, option C, Indian Council of Cultural Relations, option D, National Archives of India. Our correct answer is option number B, National Council of Science Museum. नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम से हम NCSM के नाम से जानते हैं। NCSM won award for its हर घर म्यूजियम, सोशल मीडिया कैंपेन and ways to art publication showing innovative public engagement in culture and sustainability. NCSM को हर घर म्यूजियम और वेस्ट टू आर्ट पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। मतलब इन्होंने 2 पहल स्टार्ट की हैं, एक तो हर घर म्यूजियम और एक वेस्ट टू आर्ट जो संस्कृति और स्थिरता के प्रति जन भागीदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which 2 Indian shooters won gold medals in the senior and junior women's 25-meter sport pistol event at the 68th National Shooting Championship 2025?
68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा यानी जो कंपटीशन हुआ है उसमें सीनियर और जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? Our options are option number A, Divya TS and Anjali Chaudhary. Option number B, Manu Bhaker and Simranpreet Kaur Barar. Option number C, Hina Sidhu and Yashaswini Singh Deswal. Option number D, Rahi Sarnovoth और चिंकी यादव. Correct answer is option number B, मनु भाकर एंड सिमरनप्रीत कौर बरार. अब जो ये मनु भाकर हैं ये हमारी सीनियर लेवल से हैं और सिमरनप्रीत कौर जो हैं ये जो हमारी दिख रही है मनु भाकर ये हमारी सीनियर लेवल से हैं, खेल रही हैं 25 मीटर पिस्टल में और ये सिमरनप्रीत कौर हमारे जूनियर लेवल से हैं. सो मनु भाकर won gold in the senior category and while Simranpreet Kaur Barar topped the junior event, highlighted India's strengthening women pistol shooting. भाई वुमेन्स भी आजकल शूटिंग में जाने लगी हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है. सो मनु भाकर ने सीनियर वर्ग और सिमरनप्रीत कौर बरार ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारत की महिला निशानेबाजी की मजबूती दिखी कि अब महिलाएं जो हैं वो शूटिंग वाले क्षेत्र में भी जाने लगी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which tool was launched by the Ministry of Panchayati Raj on August 14, 2025? 14 अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कौन सा उपकरण लॉन्च किया गया? ऑप्शन आर भारत नेट, सभासार, डिजिटल इंडिया पोर्टल या ग्राम कनेक्ट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सभासार. Savasar is an AI-based voice-to-text tool that summarizes panchayat meetings. It aims to improve transparency, record-keeping, and efficiency in local governance. सभासार एक AI आधारित वॉइस टू टेक्स्ट टूल है जो पंचायती बैठकों का सार तैयार करता है और पारदर्शिता यानी जो ट्रांसपेरेंसी है और कार्यकुशलता दोनों को बढ़ाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Which US law imposing sanction on Syria was repealed by Congress in 2025? सीरिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा अमेरिकी कानून 2025 में रद्द किया गया? और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, सीरिया रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, ऑप्शन बी, सीजर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ऑप्शन नंबर सी, मिडल ईस्ट सिक्योरिटी एक्ट या ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सैंक्शन इन्फोर्समेंट एक्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीजर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट 2019. The repealed removed long-standing sanction on Syria, allowing foreign investment and reconstruction. It marks a major change in U.S. foreign policy towards Syria. इस कानून के रद्द होने से सीरिया में निवेश और पुनर्निर्माण का रास्ता खुला है और जो अमेरिका की नीति है उनमें भी बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया है और हमें देखने को मिला भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which joint India-UAE military exercise focusing on urban warfare was held in Abu Dhabi in December 2025? दिसंबर 2025 में आबू धाबी में आयोजित भारतीय यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ऑप्शन ए, डेजर्ट स्टॉर्म, ऑप्शन बी, डेजर्ट साइक्लोन 2, ऑप्शन सी, डेजर्ट ईगल
या ऑप्शन डी डेजर्ट शे? सारे ही नाम डेजर्ट से हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज गिव मी आंसर। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट साइक्लोन 2 के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, दिस वाज सेकेंड एडिशन, ये इसका सेकेंड एडिशन रहा है जॉइंट एक्सरसाइज का। Second edition of the joint exercise. It focuses on urban warfare and US mission and improving coordination between two armies. यह जो अभ्यास है वो शहरी युद्ध और संयुक्त अभियानों पर केंद्रित था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Where did Tesla open its first electric vehicle charging station in India in December 2025? 12 दिसंबर 2025 में टेस्ला ने भारत में अपना पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए बेंगलुरु व्हाइटफील्ड टेक पार्क, ऑप्शन बी गुरुग्राम डीएलएफ हॉरिजन सेंटर, ऑप्शन सी मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद हाईटेक सिटी। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम डीएलएफ हॉरिजन सेंटर। टेस्ला फर्स्ट Tesla first Indian charging station include high-speed V4 superchargers. It support the growth of the electric vehicle and reduce the range anxiety. वही इस चार्जिंग स्टेशन में हाई स्पीड सुपरचार्जर्स लगाए गए हैं और जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये टेस्ला ने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट किया है, ठीक है, जो गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which institute developed EGCG, dopamine, tri tryptophan nanoparticles for Alzheimer's treatment in 2025? 2025 में अल्जाइमर रोग के इलाज हेतु नैनो पार्टिकल किस संस्थान ने विकसित किए हैं? और ऑप्शंस आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसे हम IISC भी बोलते हैं, IISC बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, ऑप्शन सी निमहंस बेंगलुरु, या ऑप्शन डी एम्स न्यू दिल्ली। भाई किसने स्टार्ट किया है ये अल्जाइमर से रिलेटेड, अल्जाइमर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड EGCG डोपामिन ट्रिप्टोफैन नैनो पार्टिकल्स? कौन सा इंस्टीट्यूट है? भाई इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। ये मोहाली से स्टार्ट हुआ है। INST scientists created nanoparticles that target multiple causes of Alzheimer. जो अल्जाइमर के डिफरेंट कॉजेज होते हैं उनको जानने के लिए, ताकि जान सके, एंड सच एज amyloids buildup and inflammation, while also support brain cell repair. इन नैनो पार्टिकल से अल्जाइमर के कई कारणों को एक साथ लक्षित किया जा सकता है और मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत में भी इसको मदद लिया जा सकता है। नैनो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे अल्जाइमर का ट्रीटमेंट होने वाला है या उनके कॉजेज को जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट ट्रेड टारगेट डिड द प्राइम मिनिस्टर प्रपोज फॉर इंडिया जॉर्डन रिलेशंस इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में भारत जॉर्डन व्यापार के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा लक्ष्य प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए $2 बिलियन, ऑप्शन बी $3 बिलियन, ऑप्शन सी $5 बिलियन, ऑप्शन डी $10 बिलियन। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी $5 बिलियन।
उद्देश्य ये जो उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में व्यापार को दोगुना करना है, खासकर दवा, डिजिटल तकनीक एंड नवीनीकरण ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में। ठीक है। The goal is to double bilateral trade over 5 years by strengthening cooperation in sector like pharma, digital technology, renewables, and agriculture also. So next question is question number 15. What action did US President Donald Trump take against Venezuela Maduro regime in December 2025? दिसंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के मादुरो में शासन के खिलाफ क्या कदम उठाया है? भाई डोनाल्ड ट्रंप जी क्या कर रहे हैं? किसके खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं? वेनेजुला के अगेंस्ट उठाया गया एक कदम है। ठीक है, तो कौन सा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिक्लेयर इट अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, option B declare it a foreign terrorist organization and order an oil blockade, option C lifted all sanctions, option D signed a trade agreement. ये अभी ही न्यूज में था कुछ दिन पहले भी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, डिक्लेयर इट अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर एन ऑयल ब्लॉकेड। The rare move directly targeted Venezuela oil exports and backbone of its economy and marked a sharp escalation in US policy also. इस कदम से वेनेजुएला के जो तेल निर्यात पर सीधा असर पड़ा है और अमेरिकी नीति में तीखा बदलाव देखा गया है कि जो अमेरिका जो नीति अपनाया जा रहा है वो थोड़ी तीखी नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Which two institutions signed a work plan 2025 to 27 to strengthen agriculture cooperation between India and Argentina? भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने 2025-27 का कार्य योजना समझौता किया? Our options are option number A ICAR and INTA, option B ICAR and FAO, option C INTA and World Bank, option D ICAR and WTO. Correct answer is option number A ICAR and INTA. The agreement focus on biotechnology, livestock, digital farming, biosafety, and sustainable agriculture through shared research and technology also. समझौता ये जो समझौता किया गया है ये जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, डिजिटल खेती और टिकाऊ कृषि पर केंद्रित रहा है ताकि इन सब चीजों को स्ट्रेंथन मिल सके और ज्यादा लंबे समय तक हम इसका यूज कर सके सस्टेनेबल तरीके से ताकि आगे वाली जनरेशन भी इसका यूज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. What is the name of India's first indigenously built diving support craft commissioned in December 2025? 17 दिसंबर सॉरी दिसंबर दिसंबर 2025 में कमीशन की गई भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? ऑप्शंस आर गिवन बिलो. ऑप्शन ए DSC A10, DSC A15, DSC A20, DSC A25. 10, 15, 20 और 25 बताइए कौन सा है? और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी A20. DSC A20. DSC A20 was commissioned at और कमीशन कहाँ पर हुई है? कोची में.
commission at Kochi and support underwater diving, salvage and training. It reflects India's self-reliance in naval shipbuilding. ठीक है. भाई आज की करंट अफेयर तो यहीं पर फिनिश होती है. अब जो इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए आज का रिकैप वन लाइनर एक्सप्लेनेशन डाला है. आप जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है. आप एक बार इसको रिकैप के तौर पर रिवाइज करेंगे तुरंत जल्दी से फटाफट 5 मिनट के अंदर. ठीक है. तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर दिया है वन लाइनर, ताकि सब समझ पाए. और आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. Thank you for watching for this video, and if you like this video then you will subscribe and like also more and more and more. ठीक है. Now again thank you so much.